In previous classes, we have discussed query processing, then file organization. Now we have completed fourth unit. Now from today onwards, we will be discussing unit fifth. In unit fifth is about transactions. Therefore, today's topic is transaction management. Before learning how to manage the transaction, first of all, we must be knowing what is a transaction. ट्रांजैक्शन मींस इन हिंदी इज लेन देन. ट्रांजैक्शन का हिंदी में मतलब होता है लेन देन. तो इन द सेम मैनर, whenever we are retrieving data from the database or whenever we are updating data in the database, it means we are performing transaction on the database. अगर हम डेटाबेस से डेटा ले रहे हैं यानी कि हम डेटाबेस से लेन कर रहे हैं, और अगर हम डेटाबेस में डेटा डाल रहे हैं, डेटाबेस में नया डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, पुराना डेटा मॉडिफाई कर रहे हैं या पुराना डेटा डिलीट कर रहे हैं, यानी कि हम डेटाबेस को डेटा दे रहे हैं. इट मींस हम डेटाबेस के साथ लेन देन कर रहे हैं. एंड इफ वी आर परफॉर्मिंग लेन देन विद द डेटाबेस, दैट इज नोन एज अ ट्रांजैक्शन. क्लियर स्टूडेंट्स? बट अ ट्रांजैक्शन may involve one or more operations. ऐसा कंपल्शन नहीं है कि एक ट्रांजैक्शन में एक ही ऑपरेशन इन्वॉल्व होगा. एक ट्रांजैक्शन में मल्टीपल ऑपरेशंस भी इन्वॉल्व हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल, हमने कहा ट्रांसफर ₹100 फ्रॉम एज अकाउंट टू बीज अकाउंट. एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी. हमें पर्सन ए के अकाउंट से पर्सन बी के अकाउंट में ₹100 ट्रांसफर करने हैं. तो यहां पर दिस इज अ वन ट्रांजैक्शन, but this transaction basically comprises of two instructions. ये ट्रांजैक्शन तो एक है, लेकिन इस ट्रांजैक्शन में दो इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म हो रही हैं. क्या क्या इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म हो रही हैं? ए के अकाउंट से हमें ₹100 माइनस करने हैं और बी के अकाउंट में हमें ₹100 ऐड करने हैं. इट मींस दिस ट्रांजैक्शन comprises of two operations, comprises of two instructions. Therefore, we can say that a transaction may comprises of one operation, or a transaction may also comprises of two or more operations. Theoretically क्या definition दी है देखिए इन्होंने ट्रांजैक्शन की. A transaction is a unit of program execution that accesses and possibly updates various data items. ट्रांजैक्शन प्रोग्राम की एक यूनिट है जो या तो डेटाबेस से डेटा एक्सेस कराती है या डेटाबेस के डेटा को अपडेट करती है. In other words, we can say that a transaction is an event which occurs on the database. Generally, a transaction reads a value from the database or writes a value to the database. जो अभी हमने डिस्कस किया था, whenever we are performing any operation with the database, such as while we are retrieving the data from the database or while we are updating the data in the database by performing insert, update or delete command, such kind of operations are known as transactions. Although a transaction can both read and write operations on the database, there are some fundamental differences between these two classes of operations. Means basically we are required to perform only two operations with the database. One is retrieving the data from the database, that is known as performing reading operation on the database. Another is updating data in the database, that is known as performing write operation on the database. Both are different category of operations. Therefore, we can say that whenever we are performing a transaction on the database, we may perform following two category of operations. First is known as read operation, second is known as write operation. A read operation does not change the image of the database in any way. जब भी हम डेटाबेस पर रीड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उससे डेटाबेस में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, डेटाबेस की इमेज चेंज नहीं होती है. But whenever we are performing a write operation on the database, write operation will always change the image of the database. जब भी आप डेटाबेस में write operation परफॉर्म करेंगे, चाहे आप नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं, चाहे आप पुराना रिकॉर्ड अपडेट कर रहे हैं, चाहे आप पुराना रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हैं, it means image of the database will be changed. Therefore, they are saying transactions bring the database from an image which existed before the transaction occurred. अगर हम डेटाबेस पर राइट ऑपरेशन वाली ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन हमारे डेटाबेस को एक इमेज से दूसरी इमेज में ले आती है. इन दोनों इमेज को बोलते हैं BFIM और AFIM. BFIM stands for before image, AFIM stands for after image.
यानी कि ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने से पहले डेटाबेस की जो इमेज थी दैट इज नोन एज BFIM. ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने के बाद डेटाबेस जिस इमेज में आ गया दैट इज नोन एज AFIM. But if your transaction consists only of read operation, then BFIM and AFIM will remain same, because in case of read operation, image of database will not be changed during the transaction. But in case of write operation, BFIM will be different than AFIM. Clear, students? Yes, sir. चलिए, now come to the properties of a transaction. अब देखिए, why we are discussing about transaction, as we have already discussed, whenever we are performing any operation with the database, such as whenever we are retrieving data from the database, or whenever we are updating data within the database, then such kind of operations are known as transactions. Whenever we are performing updating operations within the database, these operations may place the database in an inconsistent state. And if our database has been placed in an inconsistent state by any transaction, it means we are having incorrect data in the database. Therefore, there must be a guarantee by the DBMS that after any transaction, our database must be consistent. If a database was consistent before the transaction, then database must also be consistent after the transaction. Therefore, every DBMS is responsible for the correct execution of the transaction. If DBMS does not look after for the correct execution of the transaction, then that transaction may place the database in inconsistent state. Therefore, every DBMS has been designed in such a manner that it will look after for the correct execution of the transaction, and this process is known as transaction management. जब भी हम डेटाबेस पर कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं, तो ड्यू टू राइट ऑपरेशन ऑफ द ट्रांजैक्शंस may place the database in inconsistent state. जब भी आप डेटाबेस पे कोई भी अपडेट ट्रांजैक्शन चलाते हैं, तो उन अपडेट ट्रांजैक्शंस की वजह से हमारा डेटाबेस इनकंसिस्टेंट स्टेट में जा सकता है. इसलिए ये डीबीएमएस की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब भी उस पर कोई भी ट्रांजैक्शन चलाई जाए, अगर वो अपडेट ट्रांजैक्शन है तो डीबीएमएस उसको करेक्टली एग्जीक्यूट कराए ताकि हमारा डेटाबेस इनकंसिस्टेंट स्टेट में ना जाए. इसको मैनेज करने के लिए डीबीएमएस हर टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक ट्रांजैक्शन बोलता है, और ट्रांजैक्शन एक या एक से ज्यादा ऑपरेशन कंटेन कर सकती है. तो इसलिए डीबीएमएस में सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन कैसे मैनेज करते हैं वो सीखने से पहले हम सीख रहे हैं ट्रांजैक्शन क्या होती हैं और ट्रांजैक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं. इफ एनी ट्रांजैक्शन फॉलो ऑल ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज, then database will never be in inconsistent state after the execution of the transaction. अगर हमारा डीबीएमएस ट्रांजैक्शन की सारी प्रॉपर्टीज फुलफिल करेगा, फॉलो करेगा, तो हमारा डेटाबेस कभी भी इनकंसिस्टेंट स्टेट में नहीं जाएगा. Therefore, now we will be discussing properties of a transaction. Important topic है properties of a transaction. एग्जाम में properties of a transaction का क्वेश्चन जरूर आता है. Every transaction for whatever purpose it is being used has the following four properties. आप कोई भी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करा रहे हैं, आप कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, सभी ट्रांजैक्शन की ये फोर प्रॉपर्टीज होती हैं. These properties are also known as acid properties of a transaction. इन प्रॉपर्टीज को ट्रांजैक्शन की एसिड प्रॉपर्टीज भी कहते हैं. एसिड वर्ड कहां से आया है? ट्रांजैक्शन की जो फोर प्रॉपर्टीज होती हैं, हर प्रॉपर्टी का फर्स्ट अल्फाबेट लिया गया है. फर्स्ट प्रॉपर्टी से अल्फाबेट लिया गया है ए, सेकंड प्रॉपर्टी से अल्फाबेट लिया गया है सी, थर्ड प्रॉपर्टी से अल्फाबेट लिया गया है आई, फोर्थ प्रॉपर्टी से अल्फाबेट लिया गया है डी. That's why they are also known as acid properties. First property is atomicity, second property is consistency, third property is isolation, fourth property is durability. यानी कि अगर आपकी जो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, अगर वो ट्रांजैक्शन इन चारों प्रॉपर्टीज को फॉलो करती है, then there is a guarantee that database must always be in consistent state after the execution of the transaction if it was in consistent state before the execution of the transaction.
अगर कोई भी ट्रांजैक्शन इन चारों प्रॉपर्टीज को फुलफिल करती है तो डेटाबेस हमेशा हमारा कंसिस्टेंट स्टेट में रहेगा, अगर वो ट्रांजैक्शन से पहले कंसिस्टेंट स्टेट में था। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल व्हाट आर दीज फोर प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एटोमिसिटी। Atomicity means single, means this means either all of the instructions within the transaction will be reflected in the database or none of them will be reflected. जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, a transaction may consist of one or more operations. Suppose there is a transaction which consists of 4 operations. Now अगर वो हमने ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कराई, उस ट्रांजेक्शन के 2 ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो गए, 2 ऑपरेशन एग्जीक्यूट नहीं हुए, तो इसका मतलब है वो एटोमिसिटी प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करती है। ट्रांजेक्शन की एटोमिसिटी कहती है कि उस ट्रांजेक्शन में जितने ऑपरेशंस हैं, या तो सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म ना हो। अगर ऐसा होता है देन ट्रांजेक्शन फुलफिल एटोमिसिटी प्रॉपर्टी। अगर ऐसा नहीं होता है मींस ट्रांजेक्शन के कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो गए हैं और कुछ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो पाए हैं। It means transaction does not fulfill atomicity property and now our database will become inconsistent. कैसे एग्जांपल से समझाया गया है, इन्होंने कहा है सब, अभी जो हम जिस एग्जांपल का हम बात कर रहे थे वही एग्जांपल इन्होंने लिया है। They are saying suppose there is a transaction which is required to transfer ₹100 from A's account to B's account. इन्होंने कहा हमें एक ट्रांजेक्शन परफॉर्म करनी है। ट्रांजेक्शन क्या है? A के अकाउंट से ₹100 B के अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो पहले इस ट्रांजैक्शन का शेड्यूल बनाते हैं। शेड्यूल का मतलब है ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय द ट्रांजैक्शन। वो ट्रांजैक्शन क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगी और किस सीक्वेंस में परफॉर्म करेगी, दैट इज नोन एज शेड्यूल। हमने कहा सपोज ट्रांजैक्शन इज T1, तो ये सबसे पहले क्या करेगी, ए की वैल्यू रीड करेगी, रीड ए, फिर ए की वैल्यू में 100 का सब्ट्रैक्शन करेगी, ए इक्वल टू ए माइनस 100, फिर ए की वैल्यू डेटाबेस में राइट करेगी, राइट ए, फिर बी की वैल्यू रीड करेगी, रीड बी, फिर बी की वैल्यू में 100 का इंक्रीमेंट करेगी, बी इक्वल टू बी प्लस 100, और फिर बी की वैल्यू राइट करेगी, राइट बी। बताइए ट्रांजैक्शन समझ आई कि नहीं? यस सर। यस सर। अब हमें देखना है ये ट्रांजैक्शन एटोमिसिटी विद रेस्पेक्ट टू एटोमिसिटी कैसे वर्क करेगी। दिस ट्रांजैक्शन बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 6 ऑपरेशंस। देख पा रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर, ये ट्रांजैक्शन में 6 ऑपरेशंस है। जब हमने इस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट किया और इस ट्रांजैक्शन के 6 ऑपरेशंस परफॉर्म हो गए, इट मींस दिस ट्रांजैक्शन फॉलो एटोमिसिटी प्रॉपर्टी। लेकिन क्या हुआ, मान लीजिए इन्होंने नीचे एग्जांपल में बताया, इन्होंने कहा सपोज ए और बी दोनों के अकाउंट में 1000 रुपीस है। अभी इनिशियली ए का बैलेंस है 1000 रुपीस और बी का बैलेंस है 1000 रुपीस। तो हमने ए और बी के अकाउंट का सम करा, बैलेंस का सम कराया, कितना आ रहा है 2000। क्लियर स्टूडेंट्स? जी सर। यस सर। अब अगर हम ए के अकाउंट से 100 रुपीस बी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं तो उसके बाद भी इन दोनों के बैलेंस का सम कितना आना चाहिए? 2000। क्लियर? अब इन्होंने कहा the above transaction has 6 operations to transfer the amount from A to B account. The AFI, अब BFIM क्या है? BFIM का मतलब है बिफोर इमेज। बिफोर इमेज है ए के अकाउंट में बैलेंस है 1000, बी के अकाउंट में बैलेंस है 1000। AFM क्या, IM क्या होनी चाहिए? आफ्टर इमेज होनी चाहिए। ए के अकाउंट में बैलेंस हो जाए 900 और बी के अकाउंट में बैलेंस हो जाए 1100। लेकिन इन्होंने कहा सपोज देयर इज अ पावर फेलियर जस्ट आफ्टर 3 इंस्ट्रक्शंस। ये ट्रांजैक्शन स्टार्ट एग्जीक्यूट होनी स्टार्ट हुई, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई, सेकंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई, थर्ड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई और उसके बाद पावर फेलियर हो गया। पावर फेलियर होने के बाद ट्रांजैक्शन आपकी बाकी ऑपरेशंस एग्जीक्यूट नहीं हुए। अब ट्रांजैक्शन जब हमारा पावर रिकवर हो गया, पावर दोबारा से आ गई है, जनरेटर चल गया, हमने कंप्यूटर ऑन किया, तो अब हम उसमें देखेंगे तो ए के अकाउंट में मिलेगा 900 लेकिन बी के अकाउंट में मिलेगा 1000 और उसका सम कराएंगे तो आपके पास आएगा 1900। इसका मतलब है डेटाबेस कंसिस्टेंट नहीं है क्योंकि इस ट्रांजैक्शन की एटोमिसिटी प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं होती है। एटोमिसिटी प्रॉपर्टी कहती है कि ट्रांजैक्शन जितने ऑपरेशंस कंटेन करती है या तो उसके सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो या एक भी ऑपरेशन परफॉर्म ना हो। यहाँ पर हमारी ट्रांजैक्शन के 3 ऑपरेशन परफॉर्म हो गए हैं, 3 ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुए हैं, देयरफॉर this transaction does not fulfill atomicity property and now database will be in inconsistent state. बताइए स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टी समझ आई कि नहीं? जी सर। यस सर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कंसिस्टेंसी।
कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी सेम है. If our database was consistent before the execution of any transaction, then it must be consistent after the execution of that transaction. Consistency property सीधे सीधे कहती है कि अगर आपका डेटाबेस ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करने से पहले कंसिस्टेंट था तो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद भी कंसिस्टेंट होना चाहिए. तो वो कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी फुलफिल करती है, अदरवाइज वो कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं करती है. कैसे पता चलेगा? अब वही वाला एग्जांपल लेते हैं जो भी हमने लिया था. हमने देखा T1 ट्रांजैक्शन को चलाने से पहले ए और बी के अकाउंट का सम 2000 था, तो T1 ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद भी ए और बी के अकाउंट का सम 2000 ही आना चाहिए. अगर ए और बी के अकाउंट का सम 2000 ही आ रहा है तो वो ट्रांजैक्शन आपकी कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी को फुलफिल करती है. लेकिन अगर 2000 से कम या 2000 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब है वो ट्रांजैक्शन आपकी कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं करती है. क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. हेलो. Yes, sir. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज Yes, sir. आइसोलेशन. आइसोलेशन मींस, देखिए whenever we are working with a database, basically we have to work with the concept of centralized database. जब भी हम डेटाबेस में काम करते हैं तो डेटाबेस में सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस का कंसेप्ट होता है. सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस मींस डेटाबेस इज इंस्टॉल्ड ऑन वन मशीन which is known as database server and multiple clients are accessing the data from that machine. It means if multiple clients are accessing the database from the single machine, it means more than one transactions are being executed on the same database at the same time. तो ऐसा नहीं है डेटाबेस में एक बार में एक ही ट्रांजैक्शन होगी. डेटाबेस में एक ही बार में एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो सकती हैं. Suppose multiple transactions are being executed at the same time on a database, then every transaction must be executed in isolation. हर ट्रांजैक्शन आइसोलेशन में एग्जीक्यूट होनी चाहिए. एक ट्रांजैक्शन को दूसरी ट्रांजैक्शन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए. एक ट्रांजैक्शन दूसरे ट्रांजैक्शन के इन्फ्लुएंस में नहीं होनी चाहिए. अगर कोई ट्रांजैक्शन किसी दूसरी ट्रांजैक्शन के इन्फ्लुएंस में एग्जीक्यूट होती है तो ये प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं होती है, और अगर ये प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं होती है तो ट्रांजैक्शन के बाद हमारा डेटाबेस इनकंसिस्टेंट हो सकता है. इवन दो, देखिए क्या कहते हैं ये, इवन दो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस में एग्जीक्यूट कंकरेंटली, दिस सिस्टम गारंटीज दैट फॉर एवरी पेयर ऑफ ट्रांजैक्शंस TI and TJ, it appears to TI that either TJ finished execution before TI started or TJ started execution after TI finished. Thus, each transaction is unaware of other transactions executing concurrently in the system. किसी भी एक ट्रांजैक्शन का किसी भी दूसरी ट्रांजैक्शन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए. वो चाहे पहले स्टार्ट हो, पहले एग्जीक्यूट हो, बाद में स्टार्ट हो, बाद में एग्जीक्यूट हो, कैसे भी एग्जीक्यूट हो, हर ट्रांजैक्शन का केवल अपने आप से मतलब होना चाहिए. मींस एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट बी एग्जीक्यूटेड इन आइसोलेशन. क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. लास्ट Yes, वन sir. इज ड्यूरेबिलिटी. ड्यूरेबिलिटी मींस, देखिए जब भी हम कोई भी मॉडिफिकेशंस करते हैं, जब भी हम कोई भी अपडेशंस करते हैं, वो अपडेशंस पहले प्राइमरी मेमोरी में होते हैं और फिर प्राइमरी मेमोरी से वो अपडेशन सेकेंडरी मेमोरी में होते हैं. ड्यूरेबिलिटी कहती है ट्रांजैक्शंस ने जो भी मॉडिफिकेशंस प्राइमरी मेमोरी में किए हैं, those modifications must be updated in the secondary memory permanently. As you all know, whenever we store the data, data will be saved in secondary memory permanently. Clear students? जब भी आप कोई भी डेटा स्टोर कराते हैं, कोई भी डेटा सेव करते हैं, तो वो प्राइमरी मेमोरी में सेव होता है कि सेकेंडरी मेमोरी में? सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी में. क्या हम सेकेंडरी मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं? No, sir. नहीं कर सकते हैं. अब हमें कोई भी डेटा एक्सेस करना है, उसमें मॉडिफिकेशन करने हैं, तो उसके लिए हम रिक्वेस्ट भेजते हैं. रिक्वेस्ट DBMS के पास जाती है, DBMS से ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाती है. ऑपरेटिंग सिस्टम उस डेटा को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड करता है. अब हम जो भी चेंजेस करते हैं वो प्राइमरी मेमोरी में होते हैं. फिर वो चेंजेस प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में परमानेंटली अपडेट हो जाने चाहिए. दिस इज द ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी. अगर प्राइमरी मेमोरी में तो वो चेंजेस हो गए, लेकिन जब डेटा प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में जा रहा है, उस समय कोई फेलियर अकर हो गया और वो चेंजेस सेकेंडरी मेमोरी में नहीं हो पाए, then our database will be placed in inconsistent state.
because at that time transaction does not fulfill durability property. बताइए स्टूडेंट, समझ आया कि नहीं? Yes, sir. जी सर. तो ये था about the properties of a transaction. Now come to the transaction states. जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कराते हैं, a transaction may become in these 6 stages. ट्रांजेक्शन के लिए 6 स्टेट्स या 6 स्टेज होती हैं. पहली स्टेज है एक्टिव. जैसे ही आपकी ट्रांजेक्शन स्टार्ट होगी, इट विल बी इन एक्टिव स्टेट. द इनिशियल स्टेट व्हेन द ट्रांजेक्शन हैज जस्ट स्टार्टेड एग्जीक्यूशन. पार्शियली कमिटेड. पार्शियली कमिटेड का मतलब है आपने ट्रांजेक्शंस के थ्रू जो चेंजेस करने थे वो चेंजेस कर दिए, लेकिन वो चेंजेस अभी कहां हो रहे हैं? प्राइमरी मेमोरी में हो रहे हैं. तो इसका मतलब है ट्रांजेक्शन इज बीइंग एग्जीक्यूटेड प्रॉपरली. तो इसको बोलते हैं कमिट पॉइंट, की ट्रांजेक्शन कहां जा रही है? कमिट की तरफ जा रही है. क्लियर? बट किसी रीजन की वजह से कोई फेलियर अकर हो गया तो ट्रांजेक्शन कमिट नहीं हो पाएगी और कौन सी स्टेज में चली जाएगी? फेल्ड स्टेट में चली जाएगी. इफ द ट्रांजेक्शन फेल्स फॉर सम रीजन, किसी भी रीजन की वजह से ट्रांजेक्शन हमारी फेल हो गई है. अब अगर ट्रांजेक्शन फेल हो गई है तो ट्रांजेक्शन ने जो भी चेंजेस कर लिए हैं उन चेंजेस को हमें क्या करना पड़ेगा? रोल बैक करना पड़ेगा. क्योंकि ट्रांजेक्शन के कुछ ऑपरेशन परफॉर्म फेल होने तक, जब ट्रांजेक्शन फेल हुई उससे पहले ट्रांजेक्शन के कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो गए थे, लेकिन कुछ ऑपरेशन बचते थे. इसका मतलब है एटोमिसिटी प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं होती है, और अगर एटोमिसिटी प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं होती है तो हमारा डेटाबेस इनकंसिस्टेंट स्टेट में चला जाएगा. फिर हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रांजेक्शन से जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म हुए थे उन्हें रोल बैक करना पड़ेगा. दिस इज द पार्ट ऑफ रिकवरी. सीखेंगे भी आगे. अभी हम सीख रहे हैं ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट. आप कितना भी ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट करा लें, आपका ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट कितना भी अच्छा हो, बट ऑलवेज देयर आर सम चांसेस ऑफ अकरिंग फेलियर्स, एंड if failure occurs then it may place our database in inconsistent state. Then we have to recover the database. In the process of recovering the database we have to perform some operations. Rollback is one of them. Clear students? Yes, sir. Next stage is, अब अगर हमारी ट्रांजेक्शन फेल हो गई है तो उसको क्या करना पड़ेगा? अबॉर्ट करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा ट्रांजेक्शंस को. फिर अबॉर्ट, तो वो कौन सी स्टेट में जाएगी? अबॉर्टेड में. लेकिन अगर ट्रांजेक्शन फेल नहीं हुई है, पहले एक्टिव स्टेट में थी, एक्टिव स्टेट के बाद पार्शियल कमिट में गई, पार्शियल कमिट के बाद वो फेल नहीं हुई है, वो हमारी सीधी कौन सी स्टेट में चली गई? कमिटेड स्टेट में चली गई. कमिटेड स्टेट में जाने का मतलब है कमिट पॉइंट कंप्लीट हो गया, हमारा डेटा परमानेंटली सेकेंडरी मेमोरी में राइट हो गया. तो लास्ट में ट्रांजेक्शन चली जाएगी कौन सी स्टेट में? टर्मिनेटेड स्टेट में. तो टर्मिनेटेड स्टेट में ट्रांजेक्शन दो तरीके से जा सकती है, या तो अबॉर्टेड के बाद टर्मिनेटेड स्टेट में जाएगी या कमिटेड के बाद टर्मिनेटेड स्टेट में जाएगी. अगर कोई फेलियर अकर हो गया है तो अबॉर्टेड से टर्मिनेटेड स्टेट में जाएगी. अगर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है तो कमिटेड से टर्मिनेटेड स्टेट में जाएगी. दिस कैन इजीली बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डायग्राम. ये डायग्राम देखिएगा, इस डायग्राम से आपको ट्रांजेक्शन पूरी समझ आ जाएंगी. एंट्री पॉइंट, जैसे ही ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुई, इनिशियली इट विल बी इन एक्टिव स्टेट. एक्टिव स्टेट के बाद आप जो काम कराना चाहते थे वो काम हो रहा है, यानी कि इट विल बी इन पार्शियली कमिटेड स्टेट. लेकिन एक्टिव होने के बाद ही कोई फेलियर अगर हो गया तो ये जा सकती है फेल्ड स्टेट में. अगर फेल्ड स्टेट में चली गई तो फेल्ड स्टेट से जाएगी अबॉर्टेड स्टेट में, और अबॉर्टेड होने के बाद कैंसिल हो गई यानी कि टर्मिनेटेड स्टेट में. अगर फेलियर अकर नहीं हुआ है, पार्शियली कमिट हुई है, तो पार्शियली कमिट से भी दो ऑप्शन है, या तो हमारी ट्रांजेक्शन कमिट हो जाएगी, या पार्शियली कमिट से जब कमिट की तरफ जा रही है तब कोई फेलियर अकर हो गया तो वो फेल्ड स्टेट में आ जाएगी. अगर फेल्ड स्टेट में आती है तो अबॉर्ट स्टेट में जाएगी और टर्मिनेट हो जाएगी. लेकिन अगर हमारी ट्रांजेक्शन पार्शियली कमिट से कमिटेड स्टेट में चली जाती है, यानी कि हमारा डेटाबेस सेकेंडरी मेमोरी में राइट हो जाता है, तो कमिटेड होने के बाद हमारी ट्रांजेक्शन टर्मिनेट हो जाएगी. बताइए स्टूडेंट्स, समझ आ गया अबाउट द स्टेट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन? क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर. अगर ये देखिए स्टेट समझ नहीं आएंगी तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रिकवरी होगा वो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए ये स्टेट्स ध्यान से समझ लीजिएगा. क्लियर? यस सर. चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है अब हमारा. ये तो हमने समझा व्हाट आर ट्रांजैक्शंस, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजैक्शंस, what are the states of the transactions. Now we will learn how execution of the transactions
can place our database in inconsistent state, or how we can check, how we can determine the execution of the transactions, the process of the execution of the transactions, so that database will not be placed in inconsistent state. अभी तक हमने ट्रांजैक्शंस के बारे में सीखा, ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, ट्रांजैक्शंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, एग्जीक्यूशन के दौरान ट्रांजैक्शन किन किन स्टेट्स में जाती हैं। लेकिन अब हम सीखेंगे कि ट्रांजैक्शंस को कैसे एग्जीक्यूट कराने से हमारा डेटाबेस इनकंसिस्टेंट स्टेट में जा सकता है, या ट्रांजैक्शन को हम कैसे एग्जीक्यूट कराएं कि हमारा डेटाबेस इनकंसिस्टेंट स्टेट में ना जाए। दैट इज नोन एज ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन और एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। देखिए, देयर आर टू टाइप ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शंस आर देयर। फर्स्ट वन इज सीरियल एग्जीक्यूशन, सेकंड वन इज कंकरंट एग्जीक्यूशन। What do you mean by serial execution? Serial execution means executing the transactions serially. Serially means one by one. It means at a time only one transaction can be get executed. Clear, students? Yes, sir. For example, suppose we are working with a centralized database and we have such DBMS which supports only serial execution of the transaction. It means at a time only one client's request can be get processed. If we are working with this environment, then performance will be degraded. अगर आप सीरियल एग्जीक्यूशन ट्रांजैक्शन एनवायरनमेंट में वर्क कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा डिग्रेड हो जाएगी। एक बैंक का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए सपोज हम किसी बैंक में जाते हैं, उस बैंक में एक काउंटर है हमारा बैलेंस इंक्वायरी के लिए, एक काउंटर है हमारा अमाउंट डिपॉजिट, दो काउंटर है अमाउंट डिपॉजिट कराने के लिए, दो काउंटर है अमाउंट विड्रॉ कराने के लिए, एक काउंटर है अकाउंट ओपन कराने के लिए, एक काउंटर है पासबुक में एंट्री कराने के लिए। अब अगर आप वर्क कर रहे हैं, आप उस बैंक में जो एनवायरनमेंट है वो सीरियल एग्जीक्यूशन का एनवायरनमेंट है, तो एक बार में केवल एक क्लाइंट की रिक्वेस्ट फुलफिल होगी, यानी कि जो डिपॉजिट वाला काउंटर है उस काउंटर पे जो ऑपरेटर बैठे हैं उन्होंने बंदे का पैसा डिपॉजिट करने के लिए रिक्वेस्ट भेज दी, तो जब तक उनका पैसा डिपॉजिट करने वाली ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगी, बाकी सभी काउंटर्स पे कोई भी रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं होगी। एट ए टाइम ओनली वन ट्रांजैक्शन कैन बी गेट परफॉर्म। दिस इज नोन एज सीरियल एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। जी सर। Yes, sir. feasible environment? Is this environment is Not- feasible? नहीं सर। क्या ये एनवायरनमेंट फीजिबल है? नो नो सर। हम इस एनवायरनमेंट में कभी भी वर्क नहीं कर सकते हैं। अगर बैंक में ये एनवायरनमेंट एप्लीकेबल हो जाए तो बहुत लंबी लंबी लाइन लग जाएंगी। क्लियर? तो हम सेकंड एनवायरनमेंट में वर्क करते हैं, दैट इज कंकरेंट एग्जीक्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय कंकरेंट एग्जीक्यूशन? कंकरेंट एग्जीक्यूशन मींस executing two or more transactions simultaneously, executing two or more transactions at the same time. Clear students? यस सर। जी सर। चलिए, now if we are executing the transactions, अब हमारे पास दो तरह के एग्जीक्यूशन हो गए, सीरियल एग्जीक्यूशन एंड कंकरेंट एग्जीक्यूशन। क्लियर स्टूडेंट्स? जी सर। Yes, sir. What do you mean by serial execution? Serial execution of transactions means executing the transactions serially one by one. First of all, first transaction will be executed. Then after the completion of first transaction, second transaction execution begins, and third transaction will not be started till second transaction has not been completed. As soon as second transaction ends, execution of third transaction will be started. Clear students? जी सर। This is Yes, known sir. as serial execution of transactions, and serial execution of transaction will never place the database in inconsistent state. इसको कहते हैं serial execution of transactions। और अगर हम अपनी ट्रांजैक्शंस को सीरियली एग्जीक्यूट कराते हैं तो हमारा डेटाबेस कभी भी इनकंसिस्टेंट स्टेट में नहीं जाएगा। बताइए समझ आया कि नहीं?
Yes, sir. Second one is concurrent execution of transactions. What do you mean by concurrent execution of transaction? Concurrent execution of transaction means executing two or more transactions concurrently, executing two or more transactions simultaneously, executing two or more transactions at the same time. Clear, students? जी sir. Now, first of all, we must know what do you mean by executing two or more transactions at the same time. What do you mean by concurrent execution of transactions? We will learn this with the help of an example. तो मैं आपको वही एग्जांपल दिखा रहा हूं, देखिएगा. नोटपैड स्टार्ट कर रहे हैं हम. सबको डिस्प्ले हो रहा है नोटपैड? Yes, sir. Yes, Suppose sir. there is a transaction Yes, sir. T1 to calculate balance sum of balances of person A and person B. हमें एक ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करानी है टू कैलकुलेट द टोटल बैलेंस ऑफ ए एंड बी. क्लियर स्टूडेंट्स? जी sir. Yes, sir. तो इसका शेड्यूल क्या बनेगा? इसका शेड्यूल बना लेते हैं. सबसे पहले में हमने लिखी ट्रांजैक्शन T1. क्या शेड्यूल बना इसका? सबसे पहले क्या करें? रीड ए. A. क्लियर? उससे पहले हम कहें sum equal to 0, then read A, then sum equal to sum plus A, then read B, Read B. then sum equal to sum plus B, then write sum. बताइए स्टूडेंट्स, क्लियर? Yes, sir. Yes Sir. sir. This will be the operations involved in this transaction. So this transaction comprises of 1, 2, 3, 4, 5, 6 operations. बताइए स्टूडेंट्स, क्लियर? Yes sir. Yes, sir. This is known as execution schedule of a transaction. This is known as schedule of a transaction.